Hello and welcome 50-day strategy for CAT VARC. Isn't it amazing that we are day by day proceeding towards our goal? Every day takes us nearer to our goal, and how far are we prepared? Let us judge. So in this video, we are going to talk about the first important thing. Is it doable? Yes, it can be done, provided you have the right mindset. Then we will also talk about the type of questions you should be solving in the given days. And the other important thing is what and how should be your motivation level. So, can we do it? Yes. The first answer is yes. To any category you may belong. But then the point is that you have to take it. So now you have to be up and about, right? So 50 days are left for CAT and October has already started. So as I was just introducing the topic, is the time enough? Yes, the time is enough. Why? Because you have seen all these days how the questions are framed. You have seen the previous year questions. If you have not seen so far, you can log on and you will find daily we are sending, one or the other question series, whether it is VARC or DILR or whether it is quants. So you can go through those videos also so that your preparation gets a boost. राइट सो टाइम इनफ है जिसको करना होता है उसके लिए टाइम इनफ है अदरवाइज सबके लिए 24 आवर्स ही हैं सो हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड दोज 24 आवर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है this is what we are going to do also right whether you are a working professional or you are a graduate you are undergraduate जो भी है आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से you have to find out what will help you right देखिए आगे चलते हैं so now as I said October has already started we are left with these 4 weeks we can divide it into two halves 15 तक पहला और दूसरा 31st तक राइट और उसके बाद आएगा आपका नवंबर सो नवंबर के लिए स्ट्रैटेजी विल बी टोटली डिफरेंट ठीक है बात करते हैं कि यू नो व्हाट इज योर सिलेबस राइट एज सच क्या सिलेबस है यू हैव टू रीड एंड यू नो द सोर्सेस कहाँ से पढ़ना है यू हैव टू रीड फ्रॉम एऑन ओके यू हैव टू रीड फ्रॉम द मैगजीन्स यू हैव टू रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स आप सब जानते हैं ठीक है उस रीडिंग को कंटिन्यूएशन में रखिए ओके अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक्स कैन यू टेक अप द मॉक्स यस यू हैव बीन टेकिंग अब मॉक्स की फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ाना है राइट that we will be just coming to that कि how many mocks we should be taking and the most important part is analysis mock without an analysis doesn't hold any ground आप ये सोचेंगे कि मैं mocks करते जाऊं और फिर analysis ना करूं so this is not going to fetch you any result believe me so mock करिए analysis करिए even if it takes 2 or 3 hours right तभी उसका meaning है तभी उसका purpose serve होता है when you take up the analysis and apply that reasoning that learning that feedback to the next mock. Now, ये last year का है और you can understand it as the scales course for the last year. So how many questions you should be attempting? If you do number of 10 questions, आपके 10 या 11 questions correct हैं, so that will lead you to 90 percentile, right? Means 24 marks आपके आने चाहिए. I'm talking about VARC. If आपके 11 to 12 questions correct हैं, so what will happen? You will get 29 plus marks. And that will lead you to 95 percentile or 99.99 percentile के लिए number of questions correct होने चाहिए 21 या 22 and then you will get 57 plus marks. So what is your aim? You have to see where you have to be, right? जहाँ पे आपको रहना है वहाँ आप रह सकते हैं लेकिन first you make a road map in front of you. You aim the stars. तभी तो stars मिलेंगे ना तो आप stars को aim करिए. It is totally up to you, but you can do it. So initial 50 days जो हैं you choose the topics with care. अब वो टाइम आ गया है आपको भटकना नहीं है you have to be oriented now. You have to be goal oriented I must say. और क्या करना है इसके लिए what is the most important thing you have to do the previous year questions. Like I already said every day we are going live for one or the other PYQs. So we are also covering from 17 to 23 ये सब आप करते जाइए because this will be the best mock okay उसके बाद रिवीजन तो है ही अगेन व्हाट डज रिवीजन मीन फाइंडिंग आउट योर मिस्टेक्स फाइंडिंग आउट योर ग्रे एरियाज एंड वर्किंग अपॉन देम उनको कैसे सुधारना है most importantly write down the techniques for especially for the questions such as para summary para jumble para completion you note down the approaches you note down the techniques
और फिर डेडिकेटेड प्रैक्टिस करिए एंड देन यू सी दैट यू आर गोइंग टू एस इट, राइट। नवंबर में वी विल बी सोनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मॉक्स। तो अब तक 2 मॉक आप ले रहे थे, यू विल बी टेकिंग 3 मॉक्स, ओके। और प्रीवियस ईयर पेपर तो करने ही है और इसका एनालिसिस करना है। नाउ एनालिसिस प्लेज अ बिग रोल, व्हाई? बिकॉज यू हैव टू सी इफ आई गॉट अ क्वेश्चन राइट, व्हाई वाज इट राइट, इफ आई गॉट अ क्वेश्चन रॉन्ग, व्हाई वाज इट रॉन्ग, ओके। रीजनिंग जो है वो सही होनी चाहिए, राइट। And there should be reason why you are not selecting a particular passage, and of course the reason why you are selecting a particular passage, we have made a separate video on that, please go and check out। उसमें डिटेल में बताया गया है how can you choose the best RC for yourself, right। अब तक आप समझ गए होंगे कि with what type of genre you are comfortable, right। और it should be a matter of choice कि आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा रिजेक्ट कर रहे हैं। It should not be a matter of chance, and never think that since I have already started reading it, so मुझे इसको complete करना ही है। Plus another mistake is always expecting कि हम चारों ही questions कर पाएंगे। That is a misnomer। You may be able to do 2 or 3 questions in one RC, that is also possible। Now coming to the approach, you can take up first VA also। VA, for example, you can take up the summary question। I always suggest to take up the summary questions always। Why? Because it is the most doable, है ना, because वो RC की तरह ही चलता है। If you prepare for summaries, then you prepare for RC, and both the ways it is correct, right? So you can take a question of VA, then you can come to RC, then again you can go back to VA। So you should decide this approach beforehand। When you are going for the exam, पहले ही आपके mind में that should be clear what approach I am going to go for, right? So that you are prepared, right? And that preparation gives you strength। Now the 50-day study plan is coming in front of you। देखो क्या आप कर चुके हो, देखो क्या बचा हुआ है। नाउ इट्स द टाइम टू फाइंड आउट कि बचा हुआ क्या है, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अक्टूबर, सो आई टॉक अबाउट पैसेजेस, है ना। अभी पैसेजेस आपको करने हैं, दैट इज द 33% ऑफ द एंटायर, यू नो, क्वेश्चन पेपर, राइट। पूरे क्वेश्चन पेपर का 33% आरसीज है। सो यू कैन नेवर अंडरमाइन दैट। आरसीज आपको करने हैं, ओके। एंड अनदर सजेशन इज पैरा कंप्लीशन अब करिए आप, बिकॉज इन द लास्ट सेशन आई हैड टोल्ड यू कि आप पैरा समरी के ऊपर करिए फोकस और पैरा कंप्लीशन बाद में करेंगे। सो हियर आई एम, नेक्स्ट एक्सरसाइज विच यू शुड बी डूइंग इज ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट के भी क्वेश्चंस करिए, जनरली यू विल बी एबल टू डू विद देम विद पैरा जंबल्स, है ना, दे गो टुगेदर, राइट। उसके बाद जैसा मैंने बताया, पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस करिए, दे गो टुगेदर। सो इन द फर्स्ट 15 days of October, this should be your plan, and you should take at least 2 mocks। Then what should be the plan in the latter half of the month? मतलब आफ्टर 16, so passages you have to continue, क्योंकि they give you a goal oriented approach। आपको पता है कि passages solve करने हैं, and then there are questions to be solved, so you know what are the type of questions, you know what are the type of options, and how to eliminate the wrong options। वो आपकी strategy, you know, strengthen होती जाती है when you practice RC passages। Most importantly, practice from authentic sources। Like I already said, you compare कि आपने जो reasoning सोची थी was that the correct one, you have got an answer correct, that should not happen by chance, it should happen by your conscious choice, right? So practice from authentic topics। Now the next I would like to suggest, try to take up OMEX topics, other exams के भी ले लो, other management exams के, that will give you a very good coverage, है ना, and overall approach जो है ना, that will be strong, made strong by this। Then again, of course, come back to para summary, because ये तो हमारा go to question है, you cannot do away with that, and you should never do away। उसको करिए, para summary को strong बनाइए, and as I said, list down the techniques, list down the approaches which are involved in taking this, है ना। Now your focus should be on the time reduction, कि पहले 2 मिनट में करते थे one question, तो अब उसको 1 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। Set a timer and then do that, okay। Next, आप ध्यान दीजिए एनमेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस में, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं, राइट। व्हेन यू विल टेक अप द papers, right, previous year papers, so focus on those ki which are those questions which you are not getting right, so this will give you an edge above। uske baad, now in this part of the month, take up more mocks। for example, at least you take up 3 mocks, okay, 1 day mock,
then another day analysis, then another mock, then another analysis, right? Now, what will happen in November? November is totally to be given for revision, right? Now, as I said, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है लूज करने के लिए. The roadmap is clear in front of you. You have the resources in front of you, but make good use of the resources which you have got. ऐसा नहीं है कि you have collected the material and then now you do not know where to start from, right? You can stick to one or two books. Okay, but then you do them consistently. That is the keyword. Consistently kariye, find out the errors that you are making and give a dedicated approach. Find out the techniques. Okay, now the last part is what should be your areas of improvement. Okay, now even if you have not started, so you can do so with some zeal now, है ना? Better than the others. You have to compete with yourself first of all. So if you are starting now, find out what are the areas of improvement. As I already said, ये consistently आरडी चलना चाहिए दिमाग में. कहाँ मुझे improve करना है, कहाँ मुझे weaknesses को minimize करना है और strengths को maximize करना है. This is very important. उसके बाद where you are standing. Are you think you are in the category of a moderate preparation है आपका या you have a strong preparation? तो अगर strong preparation करना है, so you will have to minimize your weaknesses जैसे मैंने आपको बताया. If you feel that there are certain answer options, उसमें आप गलत हो जाते हैं. For example, except वाले questions हैं. These bother the students a lot. So you try to find out, right? कि जो information passage में दी हुई है, उसके contradictory में something which is contrasting with that information is being asked in the question, right? So you can flip the question also. ये भी कर सकते हो. ये सारे techniques हम बात करते रहते हैं in our academic questions वाले videos में, ठीक है? वो you can go to those also. So अब X factor को ही बढ़ाना है हमें. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. हमें अपने X factor को ही बढ़ाना है. And now I would uh, request Mayur sir to take over because he'll be taking up the DILR section. Should you feel any hitch, any problem, do connect with us. We'll be happy and eagerly waiting for your comments और एक request है कि please like, share and subscribe so that the channel grows, so that we get motivation and which are those areas which are really bothering you. Do let us know, हमें ज़रूर बताइए. Okay, so I'll take leave of you now. Stay connected and keep studying, keep preparing. All the best. God bless. Hello everyone, Namaskar. Welcome to your DILR section. Because we have to plan now कि भाई बचे 50 दिन को कैसे strategically align करें कि we are at the right place when CAT happens. जब भी CAT होगा तो हमारा desired percentile आ जाए. For that you have to plan very precisely और उसको execute भी करना पड़ेगा बिल्कुल step by step क्योंकि अब अगेन आपके पास बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं है कि आप आगे की तरफ बढ़ जाओ एंड देन यू रीडू थिंग्स नो सो यू हैव टू प्लान इट वेरी स्ट्रेटेजिकली सो विद दिस आई वुड लाइक टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि पहले तो टारगेट अपने सही करो लोग 5+ लेके चल रहे हैं कि 90+ परसेंटाइल आ जाएगा बट ऐसा नहीं है अगर पेपर इजी आ गया जनरली अभी तक तो ऐसे हो रहा था कि लोगों को 5+ में 90+ परसेंटाइल आया है लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया है बट अभी अपने को टारगेट ही उतना नहीं रखना है कि बेयर मिनिमम आ जाए नहीं उससे थोड़ा थोड़ा टारगेट आप राइज करेंगे कि आपको टारगेट रखना है कि अगर मुझे 90 परसेंटाइल प्लस चाहिए तो 6+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा 17+ मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे 95+ परसेंटाइल की रेंज में जाना है तो मैं 7+ क्वेश्चन टारगेट करूंगा और अगर मुझे 99+ परसेंटाइल की रेंज में जाना है तो मुझे 10+ क्वेश्चन टारगेट करना है एनी हाउ 2 सेट्स +1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस तरीके से आपको टारगेट करना पड़ेगा और उसकी स्ट्रैटेजी अभी बनेगी जब आप मॉक दे रहे होंगे तो सेट योर टारगेट्स अकॉर्डिंगली ये नहीं कि एक सेट हो गया उसके बाद फोल्ड योर हैंड्स करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अरे इसमें तो मेरा 95 आ जाएगा नहीं हमें कोशिश करनी है कि कम से कम एक सेट कंप्लीटली और एक सेट पार्शियली तो सॉल्व करें इवन इफ यू आर टारगेटिंग 90+ परसेंटाइल नेक्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स आई शुड फॉलो while I am following this strategy while I am planning these 50 days, remaining 50 days. So first thing is choose your topic. First of all, choose your topic कि भाई आज मुझे ये टॉपिक करना है या इस वीक में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है एंड देन सॉल्व बेसिक 4 to 5 सेट्स एसोसिएटेड विद द टॉपिक उस टॉपिक से एसोसिएटेड उससे लिंक 4 to 5 सेट्स आप सॉल्व करें और उसके बाद उससे एसोसिएटेड
आप 4 से 5 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से उठा के करें, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट आपको सॉल्व करने हैं उससे एसोसिएटेड, विच इज द बेस्ट बेस्ट सोर्स ऑफ प्रैक्टिस। एंड नेक्स्ट इज रिवाइज देम। बिना रिवीजन के एवरीथिंग इज 0/0, कोई इफेक्टिव प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी अगर यू आर नॉट रिवाइजिंग द थिंग्स विच यू हैव सॉल्व। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व किए उनका रिवीजन भी करना है, जो सेट सॉल्व किए उनका भी क्विक रिवीजन कर लो अगर इजी सेट सॉल्व किए। बट टारगेट अ टॉपिक, सिलेक्ट 4 to 5 इजी सेट। अगर 4 सेट में कॉन्फिडेंस आ गया तो 4 के बाद पीवाईक्यू उठा लो, 4 के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आया तो 5 सेट कर लो, मैक्सिमम 6 सेट कर लो। बट 4-5 सेट ऐसे चूज करके सिलेक्ट करके सॉल्व करो जिनमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज पीवाईक्यूज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन, दैट यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। किसी को एक दिन ही चीजें रिटेन रहती हैं, उसको नेक्स्ट डे रिवीजन प्लान करना पड़ेगा। कोई एक वीक तक रिटेन कर सकता है, उसको एक वीक बाद अपना रिवीजन प्लान करना पड़ेगा। सो रिवीजन विल बी एज पर योर रिटेंशन पावर, कितने दिन तक आप याद रख सकते हो और कितने दिन बाद रिवाइज भी करोगे तो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। बट दिस इज अ मस्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि नवंबर में क्या करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अक्टूबर, बट व्हेन यू एंटर इनटू नवंबर तो फिर अपन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस छोड़ के अपन मॉक सॉल्व करेंगे फुल लेंथ टेस्ट, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को भी फुल लेंथ टेस्ट की तरह देंगे। उसकी डिटेल्ड एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक दे दिया एनालाइज नहीं किया इज ऑफ नो यूज। एनालिसिस का मतलब यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट during the test. You are also solving the question which went right, but now you are finding out new techniques, and then you have to revise the whole mock. So plan as many mocks as you can revise. It should not be like as many mocks as I can appear for. फिर तो एक दिन में दो दे लो, दो, एक सुबह एक शाम को। बट आपको इसी तरीके से मॉक्स प्लान करने हैं कि वीक में 2 देने, या वीक में 3 देने, या वीक में 4 देने। वो डिपेंड करेगा कि मैं कितने एनालाइज और रिवाइज कर सकता हूं थरोली, क्योंकि मॉक दिस इज द फाइनल स्टेप और इसमें कोई भी ग्लिच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि टॉपिक का चार्ट है ये, 50 डेज प्लान, कि भाई मुझे इन 50 डेज में कौन कौन से टॉपिक पे मेजर फोकस करना है और कब कब क्या क्या करूं। देखो, अब एक पजल बेस्ड क्वेश्चन जनरली देखा गया है कि आता ही है। तो पजल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो पहले अक्टूबर फर्स्ट हाफ में टारगेट योर पजल्स। फॉर पजल्स यू हैव टू फॉलो दोज 3 स्टेप्स कि भाई बेसिक क्वेश्चंस उठाओ, 4 से 5 सेट करो, एंड देन सॉल्व पीवाईपीज। ठीक है। अब अरेंजमेंट पजल में क्या हो गया, लीनियर आ गया, सर्कुलर आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। जो भी मैट्रिक्स फॉर्मेशन की पजल्स हैं, ग्रिड फॉर्मेशन की पजल्स हैं, या लीनियर सर्कुलर सर्कुलर पजल्स हैं, वो सारी की सारी आपको उठा के फर्स्ट प्रायोरिटी पे अक्टूबर में खत्म कर लेनी है, विथ 5 सेट्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम दी पीवाईपी। नेक्स्ट इज क्वांट बेस्ड रीजनिंग, क्योंकि ये बहुत देखा गया है और क्वांट बेस्ड रीजनिंग आता ही है, इसलिए हम इसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ये पजल फॉर्मेशन में भी क्वांट बेस्ड रीजनिंग की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल रीजनिंग की जरूरत पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी पड़ती है। तो क्वांट बेस्ड रीजनिंग अपन साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लेंगे विद दी पजल्स, क्योंकि नंबर पजल ही आगे, तो क्वांट बेस्ड रीजनिंग हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि केस इंटेंसिव सेट की भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। सो सॉल्व सिलेक्शन एंड कंपैरिजन बेस्ड पजल्स। ठीक है। इसमें क्या है कि कोई सी भी पजल आ जाए आपकी, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट वन पजल विच इज कॉल्ड एज द इजी पजल इन द आउट ऑफ द 4 सेट्स विच कम्स इन कैट। ठीक है। एंड टॉपिक वाइज पीवाईपीस खत्म करने हैं, मतलब ये टॉपिक्स खत्म हुए, उसके बाद टॉपिक वाइज पीवाईपीस कितने सेट करने, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मर्जी है, जितने करना चाहो 10 सेट कर लो, पर इतना भी नहीं कि हम आगे का खत्म ना कर पाए। मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर में आपको इतना खत्म कर लेना है, टिल 15th of October you should be ready with this, and within this time you should be able to appear for 3 mocks। आपको 3 mocks देने कम से कम, चाहो तो 6 भी दे सकते हो, एक वीक में 2 टेस्ट भी दे सकते हो, पर आपकी मर्जी है। पर इफ यू आर अ बिगिनर देन ट्राई टू अपियर फॉर एटलीस्ट 3 mocks। डू नॉट वेट फॉर द सिलेबस कंप्लीशन, क्योंकि उसके बाद तो कैट ही आ जाएगा। गॉट इट। Next thing, when you enter the second half of the October, then you should solve the things which are generally referred to as difficult concept। Solving में थोड़ी skills चाहिए होती हैं, थोड़ा ज्यादा लॉजिकल हमें मेहनत करनी पड़ती है, केसेस ज्यादा बनाने पड़ते हैं, नंबर्स में भी केसेस बन रहे हैं, लाइक वेन डायग्राम एंड डीआई बेस्ड सेट। जब डीआई और रीजनिंग
मिक्स होके जो सेट्स बनते हैं। अब इसमें बार ग्राफ प्लस रीजनिंग आ जाएगा, प्योर बार ग्राफ के सेट जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो अपने को यहाँ पे टारगेट करने हैं। और इसी के साथ साथ तुम्हें एनमेट की भी तैयारी जो लोग कर रहे हैं, दे कैन टारगेट ओमेट स्पेसिफिक टॉपिक्स। अब ओमेट करने के फायदे हैं बहुत सारे। सीरीज हो गया तो आपकी न्यूमेरिकल रीजनिंग ही स्ट्रांग होगी, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनसे सारे आपके पजल्स ही स्ट्रांग हो रहे हैं एनी हाउ। तो डू नॉट थिंक कि मैं ओमेट कहाँ बीच में प्रैक्टिस करने लग जाऊं सर, अभी तो मेरा कैट। सो दैट इज अलाइंड विथ कैट ओनली। थिंक इन अ मैनर कि भाई आई एम सॉल्विंग न्यूमेरिकल रीजनिंग, नॉट द नंबर सीरीज और द अल्फाबेट सीरीज। आई एम नॉट सॉल्विंग कोडिंग डिकोडिंग, आई एम सॉल्विंग अ पजल वेयर कोडिंग एंड डिकोडिंग इज रिक्वायर्ड। गॉट इट और नॉट? और एनमेट स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपियर इन द एक्चुअल स्लॉट फॉर योर एनमेट एग्जामिनेशन। जो भी आपको स्लॉट मिला होगा उसी स्लॉट में आप घर पे जो मॉक रिहर्सल करने वाले हो उसी स्लॉट में करो। इट विल हेल्प योर ब्रेन एंड बॉडी टू फिट इन दैट environment. And again, in this, if I talk about cat related practice, to try at least 3 sets. मतलब by the end of October, you should be done with 6 mocks. मतलब every fifth day you have to appear for a mock. So plan accordingly कि भाई मेरा रिवीजन भी हो जाए मॉक का, एनालिसिस भी हो जाए, एंड आई एम डन विथ 5 mocks एटलीस्ट, सॉरी 6 mocks एवरी फिफ्थ डे। आई एम रेडी फॉर अ मॉक। ठीक है। नाउ व्हेन यू एंटर इनटू नवंबर, अब जो टॉपिक्स है जैसे मैक्सिमम मिनिमम हो गया, गेम्स हो गया, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है, जो जनरली लोगों को नाम से डिफिकल्ट लगते हैं, देखो है वो भी पजल सी, है वो भी न्यूमेरिकल रीजनिंग या डेटा बेस्ड रीजनिंग, बट आपको किसी किसी को वो डिफिकल्ट लगते हैं तो इट इज परफेक्टली फाइन। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इन दी नवंबर शुड बी कि भाई मैं उनके भी कुछ 3 3 4 4 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कर लूं, कुछ बेसिक 1 1 2 2 सेट सॉल्व कर लूं, और मैक्सिमम मिनिमा, गेम्स, रूट्स एंड नेटवर्क, आपकी रीजनिंग बेस्ड डीआई, है ना, कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई, जो भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो उस स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट में आप फिट कर सकते हो। एंड देन द अल्टीमेट थिंग इन द होल नवंबर इज कि अपार्ट फ्रॉम मॉक आपको बस यही करना है, मैक्सिमम मिनिमम गेम जो भी डिफिकल्ट एलआरडीआई के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट उसके अलावा यू हैव टू अपीयर फॉर अ मॉक, एनालाइज द मॉक, and then revise, and then again appear for a mock, analyze the mock, and then revise. This will be your whole chart for November कि भाई मॉक देना है, एनालाइज करना है, रिवाइज करना है, मॉक देना है, एनालाइज करना है, रिवाइज करना है। So this is your complete strategy. The PDF will also be provided to you. You can mix and match the things. You can jumble it. If you are done with this, then move this part to this here to first half of the October. Whatever is left, move it to the right hand side. It is as per your convenience. But these are the must do things for the beginners, those who are starting now, those who have already done. Keep this order in mind for the revision, for the previous year paper solving. Keep this order in mind. And if you are doing this, then definitely you will be there in CAT. है ना? इतना आपने अगर सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आपका कैट में गारंटी है कि 95 प्लस परसेंटाइल तो आ ही जाएगा, अगर कोई सिर्फ लिमिटेड 50 डेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो। नेक्स्ट, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ थिंग कि भाई देयर विल बी टॉपिक्स दोज व्हिच आई हैव नॉट स्टार्टेड। वंस यू विल स्टार्ट द टॉपिक, दे विल ईदर गो टू एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट और दे विल गो टू मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग। सपोज मैंने पजल सॉल्व करनी शुरू की, डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व किया, तो आपको लगेगा यार वो तो मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग में आता है, मेरे से सॉल्व हो ही जाता है सर, मतलब उसके लिए कोई बेसिक्स रिक्वायर्ड नहीं है। बट आपने सपोज गेम्स एंड टूर्नामेंट किया, तो गेम्स एंड टूर्नामेंट किया तो आपको लगा नहीं, इट इज देयर आर वेरियस एरियाज जहां पे मुझे इंप्रूव करना है, मैं पूलिंग में गलतियां कर देता हूँ, टीम फॉर्मेशन में गलतियां कर देता हूँ, तो इट विल गो टू हियर। देन मोर प्रैक्टिस विल ब्रिंग इट टू द मॉडरेट और द स्ट्रॉन्ग रीजन। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली हर चीज यहाँ मूव हो सकती है, या तो डायरेक्टली नेचुरली कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ लाए करेंगे व्हेन यू विल स्टार्ट, और कुछ टॉपिक्स यहाँ पहुंचेंगे तो इसमें थोड़ा एफर्ट डालने की जरूरत है। एलोकेट दी रीजन्स की भाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट किस किस में एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है। अभी गेम्स हो गया, मैक्सिमम मिनिमा हो गया, या वेन डायग्राम्स हो गया, या वेन डायग्राम इंटेंसिव, कैलकुलेशन इंटेंसिव वेन डायग्राम्स हो गए, उनको आप मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग रीजन में ला सकते हो। एंड ऑब्वियसली when you will practice these moderate or strong areas, likewise I have told you कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस,
और पजल बेस्ड प्रैक्टिस तो आपको अभी से शुरू कर देनी है, तो दे विल डेफिनेटली लीड टू एक्स फैक्टर टॉपिक्स। वहां पहुंच जाएंगे जहां पे आप टॉपिक देख के बोल पाओगे कि यार ये तो मैं तुरंत कर दूंगा, ये वाला पजल तो कर दूंगा। तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सिलेक्शन एंड रिजेक्शन स्ट्रेटेजी while attempting your actual CAT. So this is all about your DILR strategy, which you should follow for the remaining 50 days to be in that safe zone of above 90 percentile and above it, 95, 99, or whatever you are targeting. Now, Sajjan sir will be discussing the further strategy for your quant section. All the best. Keep liking, sharing, and subscribing. हेलो एवरीवन। सो अभी आपने रीटा मैम से वीआरसी की और मयूर सर से डीआईएलआर पे डिस्कशन सुना कि क्या हमें करना चाहिए लास्ट 50 डेज में अपनी प्रिपरेशन को बेटर लेवल पे ले जाने के लिए, उस लेवल पे ले जाने के लिए जहां आपको आपके मनपसंद कॉलेज मिल सके। The same thing we are going to discuss regarding quantitative aptitude. So first thing first, in these 50 days plan, okay, if you are starting right now, so I must say it's a little difficult for you, okay, although nothing is impossible for a human being, okay, who has set a target. So if you are able to work what it takes, so even if you are preparing now, you can get a decent percentile. But if you have already started preparing like 1 month back, 2 months, 3 months, 4 months back, so these last 50 days क्या करना चाहिए हमें। सो अगर हम बात करें मॉड्यूल्स और उनके सब टॉपिक की, लाइक इन केस ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स, सबसे ज्यादा वेटेज आज के टाइम पे जो कैट का है, लाइक 2017 ऑनवर्ड्स, सो सबसे ज्यादा वेटेज अरिथमेटिक का है। ऑल्दो लास्ट ईयर सेकेंड स्लॉट में अलजेब्रा के क्वेश्चन 8 to 9 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे, बट ओवरऑल अरिथमेटिक का वेटेज ज्यादा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। देन कम्स अलजेब्रा, देन कम्स ज्योमेट्री, नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम बात करें अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एवरेज मिक्सचर एलिगेशन पे है, देन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड सो ऑन। देन इन कम्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ अलजेब्रा सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह लो वो है पोलिनोमियल्स, जिसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सारे कुछ आ जाते हैं। फिर लॉगरिदम और मॉड्यूलस से भी एक एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर स्लॉट में, है ना। लास्ट 3 इयर्स का जो मेरे पास डेटा है कि टोटल 9 स्लॉट्स में सिर्फ 2 ही स्लॉट ऐसे थे जिसमें लॉगरिदम के क्वेश्चन नहीं आए। तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट हर स्लॉट में लॉगरिदम और मॉड्यूलस के क्वेश्चन आए ही आए हैं, और वो बहुत ही लॉगरिदम के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही एवरेज थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। मॉड्यूलस के कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टॉपिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, एक्सेप्ट कैट 2023, है ना। देन कम्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे ट्रायंगल और सर्कल, ये 2 सब टॉपिक हैं जिसपे सबसे ज्यादा पकड़ होना जरूरी है। अगर इन दोनों में आप फेमिलियर हैं तो बाकी के टॉपिक्स पे भी आपका कंट्रोल ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर नंबर्स और मॉडर्न मैथ्स, इन दोनों टॉपिक को लेके मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे हैं। सो डोंट ट्राई टू फोकस टू मच ऑन दीज टॉपिक्स इन लास्ट 50 डेज, ओके। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो आप इस पे, बट बहुत ज्यादा भी फोकस नहीं करना है। मेन फोकस हमें किस पे रखना है, सो यू शुड बी फोकसिंग मोस्ट ऑन अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये 3 टॉपिक पे कंप्लीट फोकस होना चाहिए। टोटल अगर हम बात करें 22 क्वेश्चंस में, तो इन 3 टॉपिक को मिला के लगभग 16 to 17 क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। So I'm sure even if you are targeting 98 plus percentile, you will be able to get there if you focus on these topics only. All right. So अगर आप last 50 days number of questions की बात करें, कितने questions on daily basis solve करने चाहिए, so
all at least 40 quantitative aptitude question you should be solving every day, है ना. Now बात करते हैं परसेंटाइल और मार्क्स की. जो लास्ट कैट 2023 का था, जिसके बारे में हम बोलते हैं कि ऑनलाइन कैट का वन ऑफ द डिफिकल्ट ईयर था क्वांट के पर्सपेक्टिव से. सो इन केस ऑफ लास्ट ईयर कैट 2023, you are getting 90 plus percentile if you are getting 40 plus marks, जिसके लिए कितने क्वेश्चन करने हैं? ओनली 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 22 क्वेश्चन, only 5 question. Then if you want 95 plus percentile, then you need to get 17 plus raw score, है ना, जिसमें एटलीस्ट 6 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं. स्टिल इट्स लिटिल बिट मोर देन 25%. Then comes 99 percentile, the dream percentile. अगर 99 क्रॉस करना है, you should be getting 26 plus score. That means at least 9 question. So अगर जैसा मैंने बताया कि अगर हम अभी भी रोज 40 क्वेश्चंस करते हैं, सो टिल लाइक कैट का जब एग्जाम है 24 नवंबर, तब तक हमारे पास लगभग 50 डेज हैं. सो यू आर सॉल्विंग अप्रॉक्स 2000 क्वेश्चन. सो फॉर if you even if you want 99 percentile, you need to get 10 question अगर लें. So for 10 correct question, you are solving 2000 question. So that is 200 question for one correct answer, है ना. So आप ratio देख सकते हो, still that is a big ratio. So late नहीं है, you can always get 99 percentile in quant. अगर हम बात करें rather than VRC and DIR, quantitative aptitude में 99 percentile लाना ज़्यादा easier है with respect to other two sections, है ना. What you need to do is practice, practice and lots of practice on daily basis. Now क्या करना है? फर्स्ट 25 डेज में जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें आप वन बाय वन चूज करो. लेट इट बी अलजेब्रा, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री. और उनकी प्रैक्टिस करने के बाद, उनके कॉन्सेप्ट समझने के बाद, जो भी कैट 2020 से 2023 तक, क्योंकि वहीं से ये जो लेटेस्ट पैटर्न है 40 minutes and 22 questions, 3 different slots, 4 years, 12 slots, है ना. A total of 12 slots, each slot 22 question. So there are 264 questions, right? So you need to solve those 264 questions. Once you are done with arithmetic, then solve arithmetic problems. Once you are done with geometry, solve PYQs, geometry problems, and then algebra, and so on. So for that, what you can do, Bhushan sir is taking 5:30 p.m. live class every day. Okay, and it has been like more than 20 days, and it's all the PYQs, quantitative aptitude PYQs question, 2017 onwards. So even if you watch those videos, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है आपके लिए. आपको बहुत ही अच्छे मज़ेदार ट्रिक्स देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. नेक्स्ट क्या करना है? नवंबर के लिए क्या फोकस करना है? तो अक्टूबर, मेक श्योर कि अक्टूबर तक जो भी सिलेबस है वो आपने कंप्लीट कर लिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और उस पे प्रैक्टिस कर लिया है, PYQs कर लिया है. नाउ इन केस ऑफ नवंबर, व्हाट यू नीड टू डू, एवरी 3 or 4 days यू नीड टू राइट अ मॉक. मीन्स एक वीक में एटलीस्ट 2 मॉक्स तो हमें लिखने. मॉक्स लिखो, उनकी एनालिसिस करो. Every single question, analyze all the 22 questions, try to understand the solution, make sure that you have practiced that on your own after watching the solution, and then if you ever see similar type of question, you are not going to leave it. So ये आपको श्योर करना है. किसके केस में? मॉक के केस में. नाउ जैसे ही मॉक आपने दिया, आप एनालाइज करो कौन सा टॉपिक है 3 मेजर टॉपिक में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अरिथमेटिक में, जिसमें सबसे कम नंबर आए. सो ट्राई टू रिवाइज दैट टॉपिक, रिवाइज द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू डू सम प्रैक्टिस, ट्राई टू राइट फ्यू सेक्शनल टेस्ट, है ना, ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और यू कैन ऑल्सो से टॉपिक टेस्ट. सो उसके बाद नेक्स्ट मॉक फिर जो वीकेस्ट लिंक है उसको सही करेंगे, फिर अगले मॉक से पहले वीकेस्ट. तो आप देखोगे ये फॉलो करने पे 4 से 5 मॉक में आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सारे टॉपिक्स पे इक्वल लेवल पे खड़े होंगे, है ना.
फिर आपको ये चूज नहीं करना पड़ेगा कि ये टॉपिक पहले करना है या ये टॉपिक पहले करना है. एंड यू कैन डू दिस. 1 month इज डेफिनेटली, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो क्वांट का सिलेबस खत्म किया जा सकता है ना. ऑफ कोर्स जितने क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स जून से जुलाई से स्टार्ट किए हैं उतने तो नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स इतने कर सकते हैं कि आप एक लेवल तक आ जाओ. ऑलराइट. नाउ इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हो, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, है ना. वी post all the videos link, YouTube videos link, and lots of information regarding all the exam, all the management exams, CATs and OMETs, and lots of other information. As you can see, tips and strategies, daily free resources, every B schools and updates to that, regular quizzes, and all the relevant information. Okay, जिसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. You can just go to one place, our Telegram group, okay, and just be up to date every day. All right. So keep preparing, guys. I hope that you will follow my advice, and the advice is given by Rita ma'am and Mayur sir, and kill this cat. So thank you for watching. Bye bye.